Namaste students, welcome back to my channel. Students, today in this video we are going to start the new chapter and the name of that chapter is coordination compounds. So we are going to introduce the new chapter. So today in this video we are going to study some important terms, some basic terms which are used in the coordination compounds. So let's start. So before the starting of the main topic, first of all you have to know that what are the coordination compounds. आपको ये पता होना चाहिए कि coordination compounds होते क्या हैं. So basically coordination compounds बेटा are the compounds in which the central metal atom is linked to number of ions or neutral molecules through coordinate bond. कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स आपके कंपाउंड्स होते हैं जिन कंपाउंड्स में जो सेंट्रल मेटल एटम होता है वो किससे लिंक्ड होता है, नंबर ऑफ आयंस और मॉलिक्यूल से लिंक्ड होता है थ्रू द कोऑर्डिनेट बॉन्ड एंड बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द कोऑर्डिनेट बॉन्ड दीज आर टर्म्ड एज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स. क्योंकि कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स इनमें प्रेजेंट होते हैं तो इन्हें क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड. सो द डेफिनेशन ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स इज coordination compounds are the compounds in which central metal atom is linked with number of ions or neutral molecules by coordinate bonds. क्लियर बेटा. सो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्लियर हुआ. ऐसे कंपाउंड जिनमें सेंट्रल मेटल एटम किससे लिंक्ड रहता है, नंबर ऑफ आयंस एंड मॉलिक्यूल से थ्रू दी कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स, उन्हें हम क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड. आई होप यू ऑल नो दैट व्हाट आर कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स. कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स क्या होता है हमारे, द बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड बाय द शेयरिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन बट दैट शेयरिंग इज नॉट म्यूचुअल. ऐसी शेयरिंग जो म्यूचुअल नहीं होती है उसको हम क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेट शेयरिंग, और कोऑर्डिनेट बॉन्ड से बनता है. नाउ इनिशियली जब ये कंपाउंड्स डिस्कवर हुए थे, इनिशियली दे वर टर्म्ड एज कॉम्प्लेक्सेस. Initially they were termed as complexes. Initially they were called as complexes. But later on when they were studied and it was observed that in these compounds we have coordination bonds, then the IUPAC recommend their name as coordination compound. इनिशियली इन्हें कॉम्प्लेक्स कहा जाता था, बट बाद में जब इनके ऊपर स्टडी हुई ये फाइंड आउट हुआ दैट दीज कंपाउंड्स कंटेन द कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स, तब जाके आपका इनका नाम IUPAC ने क्या रिकमेंड किया, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स. नाउ एट प्रेजेंट, अगर हम एट प्रेजेंट की बात करें, एट प्रेजेंट दे आर कॉल्ड एज कॉम्प्लेक्सेस एज वेल एज द कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स. राइट, अभी के टाइम पे आप इन्हें कॉम्प्लेक्सेस भी कह सकते हैं और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स भी बोल सकते हैं. नाउ दीज कॉम्प्लेक्सेस आर ऑफ 3 टाइप्स. ये जो कॉम्प्लेक्सेस होते हैं हमारे, ये 3 टाइप्स के होते हैं. मीन्स whether I am talking about complexes or I am talking about coordination compounds, these are of 3 types. First, cationic complexes. In cationic complexes, the overall charge on the complex is positive. जब कॉम्प्लेक्स के ऊपर जो भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, उस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का ओवरऑल चार्ज हमारा क्या होगा, पॉजिटिव होगा, देन दैट कॉम्प्लेक्स इज नोन एज cationic complex. फॉर एग्जाम्पल CONH3 3 पॉजिटिव. सो दिस इज अ कॉम्प्लेक्स एंड इसके ऊपर कितना चार्ज है, 3 पॉजिटिव. दैट्स व्हाई इट इज cationic complex. Similarly,
NH3 whole 6 3 positive. So this one is also a cationic complex. So what are cationic complex? Cationic complexes क्या होते हैं? The complexes in which the overall charge is positive, that complex is known as cationic complex. Second, anionic complexes. Anionic complexes. So obviously अगर cationic complexes वो होते हैं जिनका overall charge positive है, so anionic complexes क्या होंगे? The complexes in which the overall charge is negative. Overall charge हमारा क्या होगा? Minus negative. For example, AgCN whole twice negative, AgCN whole twice negative, और FeCN whole 6 4 negative. So here these two are the complexes. ये दो हमारे complexes है in which this complex carry 1 negative charge and this complex carry 4 negative charge. That's why these two are anionic complexes. ये हमारे कैसे complexes है? Anionic complexes. Now third, neutral complexes. Neutral complexes. Now neutral complexes क्या होंगे? Those complexes which do not contain any charge, neither positive nor negative. ऐसे complexes जिनमें ना ही overall charge positive होता है ना ही overall charge negative होता है, वो हमारे कैसे होंगे? Neutral complexes. For example, let us take example NiCO whole 4 or CONH3 whole thrice Cl3. So outside the square bracket I have not written any charge. Square bracket के बाहर कोई भी charge मैंने नहीं लिखा है. It means these complexes do not contain any charge, neither positive nor negative. That's why these are neutral complexes. So complexes, it means coordination compounds हमारे तीन टाइप के होते हैं. One cationic, second anionic and third आपके neutral complex. So this is our general introduction of the coordination compound. ये हमारे coordination compound का एक general introduction है. Now we are going to study the basic terms of the coordination compounds which are used in the coordination compounds. The very first term, जो first term use होता है, that is ligands and central metal atom और आयन. तो जो फर्स्ट टर्म हम लोग पढ़ेंगे जिसको हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जनरली यूज करते हैं वो है हमारा लिगेंड्स एंड सेंट्रल मेटल एटम और आयन. सो व्हाट आर लिगेंड्स? लिगेंड्स होते क्या हैं? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की डेफिनेशन में हम लोगों ने क्या पढ़ा? कंपाउंड्स इन विच द सेंट्रल मेटल एटम इज लिंक्ड टू नंबर ऑफ आयंस और एटम्स थ्रू अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड. So the donor atoms or molecules or anions which donate the electrons, which donate the shared pair of electrons to the metal atom or ion, that donor atoms, molecules or anions are known as ligands. So वो atoms, वो molecules और वो anions जो कि shared pair of electron को donate करते हैं किसको? मेटल एटम और आयन को, उन्हें हम क्या कहते हैं? लिगेंड्स. एंड द मेटल एटम और आयन विच एक्सेप्ट दिस शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो मेटल और आयन उस शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, उसे हम क्या कहते हैं? सेंट्रल मेटल एटम और आयन. सो इफ आई राइट द डेफिनेशन देन इट इज द डोनर एटम, molecules or anions which donates the shared pair of electron, the shared pair of electrons to the metal atom or ion are called ligands. उन्हें हम क्या कहते हैं? ligands. And this metal atom or ion which accepts, and the metal atom
oblique ion which accepts the shared pair of electrons. These are known as central metal atom or ion. क्लियर हुआ? तो जो देगा that is ligand and जो लेगा that is central metal atom. And because ligands are electron donor, therefore these ligands behave as Lewis base. ये किसकी तरह बिहेव करते हैं? एज अ लुईस बेस. वाई? बिकॉज ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहे हैं. एंड बिकॉज सेंट्रल मेटल एटम इज एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन, सेंट्रल मेटल एटम एक्सेप्ट कर रहा है इलेक्ट्रॉन को, तो द सेंट्रल मेटल एटम बिहेव एज लुईस एसिड. सेंट्रल मेटल एटम किसकी तरह बिहेव करता है? एज अ लुईस एसिड. क्लियर? सो These are the ligands जो कि इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं, और ये हमारे सेंट्रल मेटल एटम और आयन है जो कि इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं. Now, in ligands we have one or more than one donating atoms or groups. क्लियर? जो लिगेंड है, लिगेंड्स में हमारे पास एक या एक से ज्यादा डोनेटिंग एटम और कोऑर्डिनेटिंग ग्रुप्स होते हैं. The number of the donating or the coordinating groups present in a ligand is known as denticity of the ligand. Ligand में कितने डोनेटिंग ग्रुप या कितने डोनेटिंग एटम्स प्रेजेंट है? डोनेटिंग एटम मीन्स कितने एटम से लिगेंड इलेक्ट्रॉन को शेयर कर सकता है. क्लियर? सो द नंबर ऑफ द डोनेटिंग atoms or the coordinating groups which are present in a ligand, that is known as denticity of the ligand. So यहाँ पे इसी के अंदर एक नया टर्म इंट्रोड्यूस होगा and that term is denticity. Now what is denticity? Denticity is the number of coordinating groups present in a ligand. Clear? The number of the coordinating groups present in a ligand, that is known as denticity of the ligand. वो क्या कहलाती है? ligand की denticity. If the ligand has only one coordinating group, अगर ligand के पास सिर्फ एक coordinating group है, then तो no problem. Clear? But if the ligand has more than one coordinating group, then ligand results in the formation of 5 or 6 membered ring. जब ligand में हमारा सिर्फ एक डोनेटिंग ग्रुप होता है, एक कोऑर्डिनेटिंग ग्रुप होता है, तो वो एक सिंपल कंपाउंड बनाता है. बट जब ligand में मोर देन वन डोनेटिंग ग्रुप हमारे प्रेजेंट होते हैं, दे रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ 5 or 6 membered ring, and that ring structure is known as chilate. उसको क्या कहते हैं? chilate. And the process is known as chilation. क्लियर? उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? chilation. So again यहाँ पे एक न्यू टर्म इंट्रोड्यूस हुआ है, that is chilation. So when the ligands have more than one coordinating group, they results in the formation of 5 or 6 membered rings. 5 or 6 membered rings which are known as chilate rings. And the process and the phenomena of the formation of chilate ring is known as chilation. उसको क्या कहते हैं? chilation कहते हैं. उसको हम क्या कहते हैं? chilation. So जब ligand में सिर्फ एक coordinating group होगा, the coordination compound is a simple coordination compound. But when the ligand has more than one coordination group, then the ligand results in the formation of 5 or 6 membered ring. उस ring को क्या कहते हैं? chilate ring. और इस process को क्या कहते हैं? chilation. And अगर chilate ring बना है, the complex is known as chilate complex. उसको हम क्या कहेंगे? chilate complex. So chilate complex is more stable as compared to the
नॉर्मल कॉम्प्लेक्स। जो चिलेट कॉम्प्लेक्स होता है वो नॉर्मल कॉम्प्लेक्स से ज्यादा स्टेबल कॉम्प्लेक्स होता है एंड उसको बहुत जगह यूज भी किया जाता है। एंड मोर द डेंसिटी ऑफ द लिगेंड मोर विल बी द चिलेशन एंड मोर इज द स्टेबिलिटी। डेंसिटी जितनी ज्यादा होगी उतने ही ज्यादा क्या बनेंगी, चिलेट रिंग्स बनेंगी, और जितनी ज्यादा चिलेट रिंग्स बनेंगी कंपाउंड उतना ही क्या होगा हमारा, स्टेबल। दिस थिंग इज क्लियर बेटा। नाउ denticity, based on the denticity we have number of ligands, different types of ligands। denticity के basis पे हमारे different types के क्या होते हैं, ligands होते हैं। the first type is didentate ligand, first is unidentate ligand, first not didentate ligand, first is unidentate ligand, unidentate ligands। So what are unidentate ligands बेटा? unidentate ligands क्या होते हैं हमारे? unidentate ligands are the ligands, unidentate ligands वो ligands होते हैं in which we have only one coordinating group। uni means one, uni means one, so dentate stand for denticity। denticity क्या है हमारी, कितने number of coordinating group हमारे present है। so one coordinating group, one coordinating group, for example let us take one example, CO NH3 whole 6 3 positive, CO NH3 whole 6 3 positive। so here the ligand is NH3, ligand हमारा NH3 है। if I draw the structure of NH3 it is like this। so this NH3 has only one ligating group, only one ligating group and that is nitrogen। वो सिर्फ और सिर्फ क्या है हमारा, नाइट्रोजन है। दैट्स व्हाई इट इज अ यूनिडेंटेट लिगेंड। नाउ we'll discuss the other type of ligands which are didentate ligands, terdentate ligands, tetradentate ligands, hexadentate ligands and ambidentate ligands। तो अभी हम किस किस के बारे में पढ़ेंगे? यूनिडेंटेट हमने पढ़ लिया है। बाइडेंटेट मीन्स टू लिगेटिंग ग्रुप्स, टू कोऑर्डिनेटिंग ग्रुप्स, थ्री कोऑर्डिनेटिंग ग्रुप्स। टर्डेंटेट TER टर्डेंटेट, टेट्राडेंटेट फोर लिगेटिंग ग्रुप्स, हेक्साडेंटेट सिक्स लिगेटिंग ग्रुप्स, ambidentate ligands, these are special kind of ligands। what are ambidentate ligands? ambidentate ligands क्या होते हैं हमारे? these are actually the unidentate ligands, these are actually the unidentate ligands which have more than one coordinating group। तो अब आप कहेंगे जब more than one coordinating group है तो unidentate कैसे हुआ? these have more than one coordinating group but at one time they can donate through only one atom। इनके पास एक से ज्यादा कोऑर्डिनेटिंग ग्रुप होते हैं लेकिन ये एक टाइम पे सिर्फ एक ही कोऑर्डिनेटिंग ग्रुप से क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकते हैं। दैट्स व्हाई दीज आर यूनिडेंटेट बट नॉट प्योरली यूनिडेंटेट, देयरफॉर एम्बिडेंटेट। क्लियर? यूनिडेंटेट क्यों है? बिकॉज एट वन टाइम दे कैन डोनेट थ्रू ओनली वन कोऑर्डिनेटिंग ग्रुप। और यूनिडेंटेट क्यों नहीं है? बिकॉज दे हैव मोर देन one coordinating groups। Clear beta? Now we will discuss these with the examples। Didentate ligands, so didentate ligands we have already discussed। the example is PtCl2En। now what is En here? En, Cl is unidentate ligand, Cl हमारा unidentate ligand ही है। this En is a didentate ligand। the formula, the full form of this En is ethylene diamine। this is ethylene diamine, CH2 NH2 CH2 NH2। now this nitrogen has one lone pair, this nitrogen has also one lone pair। so at a time this ligand, ये एक ही ligand है हमारा ethylene diamine, but at a time ये कितने इलेक्ट्रॉन को शेयर कर सकता है? दो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को थ्रू दीज टू नाइट्रोजन एटम। सो दैट्स व्हाई इट इज डाइडेंटेट लिगेंड। सिमिलरली ऑक्सलेट आयन होता है, ऑक्सलेट आयन इज COO नेगेटिव, COO नेगेटिव। क्लियर?
सो हियर बिकॉज ऑफ दीज टू नेगेटिव, ये इन दोनों ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकता है, शेयर, दैट्स व्हाई इट इज आल्सो डाइडेंटेट लिगेंड. सो दिस इज एन एग्जांपल, ये हमारा एक एग्जांपल है. सो इफ आई ड्रॉ दिस, ये कैसे होगा हमारा ड्रॉ, दिस Pt हेयर Cl Cl. व्हाई आई एम राइटिंग द एरो, मैं एरो क्यों पुट कर रही हूँ यहाँ पे, बिकॉज दिस इज अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड जिसमें Cl ने इलेक्ट्रॉन किसको डोनेट किया है, Pt को. नाउ दिस इज इथाइलिन डायमीन, ये इथाइलिन डायमीन है. सो यहाँ पे एक नाइट्रोजन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट, NH2 CH2 CH2 NH2 P. So if you see here, this results in the formation of a ring. मैंने कहा था आपसे that if we have unidentate ligand तब तो normal complex बनेगा, but if we have didentate, terdentate, tetradentate, then वहां पे ring की formation होगी. So here results in the formation of 5-membered ring, 1 2 3 4 5, and this is known as chylate ring. ये हमारा क्या होगा, chylate complex होगा. और ये chylate complex होगा तो this complex is more stable as compared to the normal complex. Clear? Now next is terdentate. Next is terdentate ligand. Now terdentate ligand का example आ जाएगा diene. Diene means diethylene diamine. This is this En. ये जो En है हमारा, ये En क्या है, this is ethylene diamine. This is ethylene diamine. This is diethylene diamine. ये हमारा क्या हो जाएगा, diethylene diamine. Now example is PtCl diene positive. Clear? And if I draw this structure, कैसे ड्रॉ करूंगी मैं ये स्ट्रक्चर, ऑन द बेसिस ऑफ दिस ओनली, इस स्ट्रक्चर के बेसिस पे मैं ये स्ट्रक्चर ड्रॉ करूंगी, Pt1Cl. क्लियर? नाउ फर्स्ट आई ड्रॉ हियर लाइक दिस, NH2 CH2 CH2. नाउ हियर आई हैव NH2, मेरे पास यहाँ पे NH2 है. इन प्लेस ऑफ NH2 आई राइट ओनली NH. मैं क्या लिखूंगी, NH. और इस NH के साथ में क्या ऐड कर दूंगी, अगेन CH2 CH2 NH2 सेम यही स्ट्रक्चर मैं इसके बाद भी ऐड कर दूंगी. सो इट इज डाइथाइलिन डाइअमीन. क्लियर? नाउ नेक्स्ट इज टेट्राडेंटेट. टेट्राडेंटेट टेट्राडेंटेट का एग्जांपल आ जाएगा ट्राइइन. ट्राइइन मीन्स triethylene diamine. Triethylene diamine, and the formula, the example is Pt triene 2 positive. Pt triene 2 positive. Now I draw this structure from this structure. मैं इस structure से ये structure draw करूंगी, like Pt, here it is NH2 CH2 CH2 NH CH2 CH2 NH. Now here I have NH2, तो in place of NH2 I'll write NH. मैं क्या लिखूंगी, NH, then CH2 CH2 NH2 and here. Cleared up? Simple example. Diethylene diamine, diethylene diamine, triethylene diamine, and through this structure you can draw the other two structures. Clear? Now next is hexadentate ligand. Hexadentate ligand. So hexadentate ligand means क्या होगा, we have how many coordinating group in the ligand? कितने coordinating group होंगे हमारे पास? Hexa means 6, so we have 6 coordinating group. Now 6 coordinating group का example जो हो जाएगा यहाँ पे, that is EDTA, that is ethylene diamine tetraacetate ion. Ethylene diamine tetraacetate ion. Now this is ethylene diamine, ये हमारा ethylene diamine है. So CH2
NN. Now इथाइलिन डाइमीन टेट्रा एसिटेट. एसिटेट क्या होता है? एसिटेट आयन विच डिराइव फ्रॉम एसिटिक एसिड. अगर एसिटिक एसिड से हम लोग H पॉजिटिव रिमूव कर दें तो हमारे पास जो बचेगा दैट इज एसिटेट आयन. मीन्स CH3COOH. This is our acetic acid, and if I remove H positive from here, what I get? CH3CO negative, and this CH3CO negative is acetate ion. ये मेरा acetate ion है. Clear? Now because ये जो CH3 है ये किसके साथ ऐड होना है? Because with nitrogen, so it will remove its one hydrogen and then attach with the nitrogen. क्योंकि कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4. Now if it attach with nitrogen उसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी? 5. तो वो हाइड्रोजन को क्या कर देगा? रिमूव. So the formula becomes CH2COO negative, CH2COO negative, CH2COO negative and CH2COO negative. क्लियर बेटा? नाउ आप लोग ये कहेंगे कि हाउ इट इज हेक्साडेंटेट लिगेंड, क्योंकि आप लोगों को जो विजिबल हो रहा होगा, आई थिंक मेनी ऑफ यू अंडरस्टैंड दैट हाउ इट इज हेक्सा, बट जो नहीं समझ पाए, these 4 ऑक्सीजन आर है. ये 4 ऑक्सीजन तो दिख रहे हैं बिकॉज इनमें नेगेटिव 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 चार्ज प्रेजेंट है, तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे. बट लोन पेयर इज ऑल्सो प्रेजेंट इन द नाइट्रोजन ना बेटा. इस नाइट्रोजन में भी लोन पेयर है, इस नाइट्रोजन में भी लोन पेयर है. So these 2 nitrogen and these 4 oxygens are act as ligands. That's why it is hexadentate ligand. ये हमारा क्या हो गया? Hexadentate ligand. So the last one is ambidentate ligand. The last one is ambidentate ligand. So ambidentate ligand में मैंने आप लोगों को बताया था कि ambidentate ligand हमारे होते क्या हैं? They are unidentate ligand having more than one coordinating group, but at one time they can donate through only one coordinating group. That's why they are ambidentate. उन्हें हम ambidentate कहते हैं क्योंकि ये unidentate और other dentates के बीच के हैं. Unidentate की क्यों हैं? क्योंकि ये सिर्फ एक टाइम पे सिर्फ एक कोऑर्डिनेटिंग ग्रुप से एटम को डोनेट कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर सकते हैं, सॉरी. एंड दूसरे क्यों है? क्योंकि इनमें मोर देन वन कोऑर्डिनेटिंग ग्रुप्स हमारे प्रेजेंट है. फॉर एग्जांपल NO2 CN नेगेटिव SCN नेगेटिव. क्लियर? हाउ NO2? Here it is metal NO2. This nitrogen can donate. Clear? Or MON double bond O. This is also NO2. But in this oxygen will donate, in this nitrogen will donate. It means in NO2 we have 2 coordinating groups, nitrogen and oxygen. But at one time this NO2 can donate either through the nitrogen or through the oxygen. Similarly CN negative में या तो हमारा कार्बन डोनेट करेगा या फिर हमारा कौन डोनेट करेगा? नाइट्रोजन डोनेट करेगा. So in this way these acts as ambidentate ligand. So this is all about the ligands and the central metal atom or ion. I hope इतना clear हुआ होगा आपको. Now we will move to our next basic terms. नेक्स्ट इज कोऑर्डिनेशन नंबर. नेक्स्ट बेसिक टर्म जो है हमारा वो क्या है? हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर. सो व्हाट इज कोऑर्डिनेशन नंबर? द नंबर ऑफ द एटम्स ऑफ द लिगेंड which are directly attached to the central metal atom or ion, that is known as coordination number of that metal or ion. ligands के वो atoms, वो number of atoms जो directly किससे linked है? सेंट्रल मेटल एटम और आयन से लिंक्ड है, उन्हें हम क्या कहेंगे? सेंट्रल मेटल एटम और आयन के कोऑर्डिनेशन नंबर.
और आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हो कोऑर्डिनेशन नंबर? बाय सिंपली काउंटिंग द नंबर ऑफ द कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स अराउंड द सेंट्रल मेटल एटम। सेंट्रल मेटल एटम के अराउंड जितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स बने हैं, आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली सिग्मा बॉन्ड. इफ देयर इज एनी पाई बॉन्ड देन आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट पाई बॉन्ड. मैं उस पाई बॉन्ड की बात नहीं कर रही. इफ देयर इज एनी, सो all the coordinate bonds which are present around the central metal atom, आप जब उन्हें काउंट करेंगे, that is the coordination number. ये हम कैलकुलेट कर सकते हैं, बट डेफिनेशन क्या होगी? the atoms of ligands which are directly attached with the central metal atom, with the central metal atom. Clear? That is the coordination number of the central metal atom. For example, FeC2O4 whole thrice 3 negative. ये हमारे पास एग्जाम्पल है. अब आपको देख के क्या लग रहा है? इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? 3, क्योंकि आपको लग रहा है तीन लिगेंड्स हैं, तो 3 लिगेंड्स इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर 3 हो जाएगा. बट दिस इज अ डाइडेंटेट लिगेंड. ये मेरा डाइडेंटेट लिगेंड है, यानी इफ आई ड्रॉ दिस स्ट्रक्चर इट इज लाइक दिस, FeOOC like this. Clear? Similarly, OOC like this and OOC like this. Clear beta? So how many coordinating bonds are around iron? कितने coordinating bonds है आयरन के अराउंड? 1 2 3 4 5 6. तो क्या हो गया कोऑर्डिनेशन नंबर आयरन का? 6. सो कैलकुलेट करने के लिए आप कोऑर्डिनेशन नंबर को काउंट कर सकते हैं, बट द डेफिनेशन इज दिस वन. डेफिनेशन हमारी ये होगी. सो दिस इज द कोऑर्डिनेशन नंबर. ये हमारा क्या हो गया? कोऑर्डिनेशन नंबर. नाउ नेक्स्ट इज कोऑर्डिनेशन स्फीयर एंड काउंटर आयन. कोऑर्डिनेशन स्फीयर एंड काउंटर आयंस. कोऑर्डिनेशन स्फीयर एंड काउंटर आयंस. क्लियर? सो कोऑर्डिनेशन स्फीयर्स क्या होते हैं और काउंटर आयंस क्या होते हैं? लेट अस टेक वन एग्जांपल. एक एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे. CuNH3 whole 4 SO4. So this example is visible to you. Now in this example, one thing is inside the square bracket. एक चीज inside the square bracket है, these are square bracket, और एक चीज outside the square bracket है. So the central metal atom or the ligands which are present inside the square bracket, these are collectively known as coordination sphere. सेंट्रल मेटल एटम और लिगेंड्स जो कि कोऑर्डिनेशन स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर होते हैं, उनको एक साथ क्या कहा जाता है? कोऑर्डिनेशन स्फीयर. एंड विच इज प्रेजेंट आउटसाइड द स्क्वायर ब्रैकेट, उसको क्या कहते हैं? काउंटर आयन. क्लियर? दिस काउंटर आयन इज आयनाइजेबल पार्ट. यानी अगर मैं क्या करूंगी, इसको वाटर में डिसॉल्व करूंगी, इस कंपाउंड को अगर मैं वाटर में डिसॉल्व करूंगी, आई गेट CuNH3 whole 4 2 positive and SO4 2 negative. यहाँ 2 पॉजिटिव क्यों आया? बिकॉज ये न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है. न्यूट्रल है ना, कोई चार्ज नहीं है. और SO4 का हमें पता है चार्ज होता है -2, तो इसके -2 को बैलेंस करने के लिए इसमें क्या चार्ज होना चाहिए? +2. अभी ये फॉर्मूला बैलेंस्ड फॉर्मूला बनेगा. सो मुझे ये मिलेगा व्हेन आई डिसॉल्व दिस इन वाटर. इट मींस ये सेपरेट नहीं होगा, बट ये सेपरेट हो जाएगा. सो द आयनाइजेबल पार्ट, यानी बेसिकली क्या है? द आयनाइजेबल पार्ट विच इज प्रेजेंट इन अ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, दैट इज काउंटर आयन, एंड द नॉन आयनाइजेबल पार्ट विच इज प्रेजेंट इन द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, दैट इज कोऑर्डिनेशन स्फीयर. जो नॉन आयनाइजेबल पार्ट होता है उसे कोऑर्डिनेशन स्फीयर कहते हैं, जिसमें सेंट्रल मेटल एटम और लिगेंड्स होते हैं इनसाइड द स्क्वायर ब्रैकेट,
और जो आयनाइजेबल पार्ट होता है विच इज प्रेजेंट आउटसाइड द स्क्वायर ब्रैकेट उसे हम क्या कहते हैं, काउंटर आयंस. दिस थिंग इज क्लियर बेटा? एनी डाउट? ओके, नाउ नेक्स्ट oxidation state. Oxidation state. Now what is oxidation state? The charge carried by the metal atom or ion is known as oxidation state of that metal or ion. कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में सेंट्रल मेटल एटम और आयन ने जो चार्ज कैरी कर रखा है उसको क्या कहते हैं, उसका ऑक्सीडेशन स्टेट. एंड हम ऑक्सीडेशन स्टेट सेम उसी वे में फाइंड आउट करते हैं जो हमारा प्रिंसिपल मेथड है. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई हैव टू कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कॉपर इन दिस, अगर मैंने कॉपर का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या करना है, फाइंड आउट करना है, कॉपर का ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करना है. सो लेट द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कॉपर बी एक्स. नाउ दिस इज अमोनिया. अमोनिया में कोई चार्ज होता है बेटा? NH3, एनी चार्ज? नो. इट मीन्स इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, जीरो. इट इज अ न्यूट्रल लिगेंड, ये हमारा न्यूट्रल लिगेंड होगा. प्लस 4 इंटू जीरो. नाउ दिस इज SO4. SO4 में क्या चार्ज होता है, 2 नेगेटिव, दैट वी नो. इट इज एनायनिक लिगेंड, ये हमारा एनायनिक लिगेंड हो गया. सो प्लस -2 दैट इज इक्वल टू जीरो. वाई जीरो? बिकॉज इट इज अ न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स. सो x 4 इंटू जीरो कितना हो जाएगा, जीरो. प्लस -2 दैट इज इक्वल टू जीरो. सो x इक्वल टू +2. तो जो कॉपर है हमारा, कॉपर में हमारा ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो जाएगा, +2. क्लियर बेटा? वाई NH3 जीरो? बिकॉज NH3 में कोई भी चार्ज नहीं होता है. एंड वाई SO4 -2? बिकॉज SO4 में हमारा कौन सा चार्ज होता है, -2. इफ आई टॉक अबाउट क्लोरीन, तो क्लोरीन एज अ लिगेंड बिहेव करेगा. सो इट एक्ट एज अ Cl नेगेटिव, I नेगेटिव, Br नेगेटिव. सो उनका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो जाएगा, I1. इफ आई टॉक अबाउट दिस COO, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा, -2. वाई? बिकॉज इट इज प्रेजेंट एज लाइक दिस, CO नेगेटिव, CO नेगेटिव. तो हाउ मेनी नेगेटिव चार्ज, 2 नेगेटिव चार्ज. दैट्स व्हाई इसका क्या हो जाएगा हमारा ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट बिकम्स -2. ऑक्सीडेशन स्टेट हमारा क्या हो जाएगा, -2. लेट अस टेक वन मोर एग्जांपल. K2PtCl6. सो कौन सा काउंटर आयन होगा इसमें, दिस वन इज द काउंटर आयन एंड दिस इज द कोऑर्डिनेशन स्टेट. क्लियर? नाउ आई हैव टू कैलकुलेट द चार्ज ऑन प्लैटिनम. प्लैटिनम में मैंने चार्ज कैलकुलेट करना है. फर्स्ट पोटेशियम, पोटेशियम का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है, +1. सो इट इज 2 इंटू +1 प्लस प्लैटिनम का हम क्या मान लेंगे, x. क्लोरीन का कितना होता है, -1. सो इट इज +6 इंटू -1 दैट इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि ओवरऑल चार्ज क्या है हमारा, जीरो है. सो 2 + x -6 दैट इज इक्वल टू जीरो. x -4 इक्वल टू जीरो. x इक्वल टू +4. x क्या आ जाएगा हमारा, +4. So in this way you can calculate the oxidation states of the different metal atoms. इसके लिए आपको सिर्फ क्या पता होना चाहिए, that the ligand is whether cationic और anionic और neutral. मीन्स जो भी लिगेंड के ऊपर का चार्ज है वो आपको पता होना चाहिए और आप इजीली क्या फाइंड आउट कर लेंगे, किसी भी मेटल एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट कर लेंगे. क्लियर बेटा? नाउ द नेक्स्ट इज coordination polyhedron. Coordination polyhedron. Now what is coordination polyhedron? The three-dimensional arrangement of the ligands around the central metal atom or ion is known as coordination polyhedron. सेंट्रल मेटल एटम के अराउंड जो लिगेंड्स 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट शो करते हैं वो हमारा क्या होता है, कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रन. उसे हम क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रन. सो राइट डाउन द डेफिनेशन दैट द 3 डायमेंशनल arrangement of the ligands around the central metal atom results in the formation of coordination polyhedron. Clear? जो 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट होता है उसके थ्रू जो डिफरेंट ज्योमेट्रीज हमारी बनती हैं वो हमारी होती हैं ईदर टेट्राहेड्रल और स्क्वायर प्लेनर और ट्राइगोनल, बाइपिरामिडल,
trigonal, bipyramidal, and octahedral, and square pyramidal. क्लियर बेटा? अब ये कैसे होती है ये हम आगे चैप्टर में पढ़ेंगे, जब हम ज्योमेट्री के बारे में बात करेंगे तब हम ये सारी चीजें पढ़ेंगे कि कैसे कैसे हमें पता चलता है दैट द कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रन इज टेट्राहेड्रल और स्क्वायर प्लेनर और ऑक्टाहेड्रल. So definition is three-dimensional arrangement of the ligands around the central metal atom. Clear beta? Now the last point is homoleptic and heteroleptic complexes. Now what are homoleptic complexes? Homoleptic complexes क्या होते हैं? Homo means same and here leptic stand for ligands. If the central metal atom is surrounded by same kind of ligand, then it is homoleptic complex. Means if I talk about like this, CO NH3 whole 6 3 positive, ये होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स है बिकॉज इसमें जो कोबाल्ट है वो सिर्फ एक ही टाइप के लिगेंड से सराउंडेड है एंड दैट इज अमोनिया. एंड इफ आई टॉक अबाउट CO NH3 whole thrice Cl3 like this, then it is a heteroleptic complex. ये हमारा कौन सा कॉम्प्लेक्स हो गया? हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स. फॉर एग्जाम्पल इफ आई टॉक अबाउट दिस PtCl6, इट इज होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स. ये मेरा होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स है क्योंकि इसमें प्लैटिनम किससे सराउंडेड है? सिर्फ और सिर्फ क्लोरीन से. एंड दिस इज ऑल्सो होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स. ये भी मेरा क्या है? होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स. दिस वन इज ऑल्सो होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स और ये हमारा क्या हो गया? हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स. So if the central metal atom is surrounded by only one kind of ligand, then it is homo. And if more than one kind of ligands are present around the central metal atom, तो वो हमारा क्या हो जाएगा? heteroleptic complexes. So these are the basic terms. ये हमारे कुछ important terms थे जो हम आगे coordination compound chapter में use करेंगे. So that's all for today. I'll see you in my next video with the new topic.